Good morning, students. In our today class, we learn about basics of software, and we already learned in this series of basics of software integer and character data type. Now, today we learn about floating point data type. Here, floating point data type. What is the floating point number? We have to first understand. Floating point number are those number which is created with two parts, Mantissa part and exponential part in computer system. In computer system, this is there is a mechanism through which we can create a floating point number into memory. But what is a floating point number? Floating point number are those number which having decimal point. A number which having decimal point, we also known them as real number. So these floating point data types are used to store information given in real number. Means a floating point number written with a decimal point is example. Here is example 7.5, 1.0, 8.0, 3.14. All these are the example of real number, means floating point number. That type of information is stored in computer. For software development, we use floating point data type. For floating point data type information, we have to create their memory location and their variables and their constants, and for making these we use float keyword for this. And for float keyword, with the help of float keyword, we can declare any floating point number as shown in example. Here pi is the floating point number information. Pi is a variable name which holds 3.14 value in a block, and this floating point number uh, store in memory and occupy 4 bytes. For this declaration statement, when it executes, it allocates memory of 4 bytes, and therefore we can say that for floating point number, memory uses 4 bytes. And how floating point number is stored into memory? It is notable thing that Mantissa, it is stored in two parts, Mantissa part and exponential part. Any floating point number will be stored separately in two parts, first in Mantissa part and second is exponential part. Let us see an example. Pi is a floating point number having value 3.14. It can be written as 0.314 into 10, means it is equal to that 3.14. But in exponential terms, we can also write this 0.314e, and this 0.314e can be written in memory as shown in diagram. In memory, there will be two blocks. One holds 314 and one holds 10, and 314 part means 314 wala part. It is a Mantissa part which occupy 2 byte as integer because it is a type of integer value, and while exponential part it holds 10. This is also a type of integer, so it occupy 2 bytes. Therefore we can understand that how floating point number are stored into memory, and after combining these two it will create floating point number, and that's why we can say that floating point number uses 4 bytes. Today we learn about basics of software programming. In basics of software programming data type, about floating point we learn today floating point data type. फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप का यूज़ किया जाता है ऐसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जो रियल नंबर्स को स्टोर करता है।
मेमोरी के अंदर वो मेमोरी ब्लॉक्स जो कि रियल नंबर्स को सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग बनाते वक्त स्टोर करने के लिए काम में लिए जाते हैं, उनको बनाने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप का उपयोग किया जाता है। रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर वे नंबर होते हैं जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट होता है। जैसे एग्जांपल दिया है 7.5, 1.0, जिसमें पॉइंट आ रहा है, पॉइंट के पीछे वैल्यू हो ना हो, बट स्टोरेज में वो 0.0 भी स्टोर कर रहा हो लास्ट आगे के डिजिट के अंदर पॉइंट के बाद। 8.0, 3.14, ये सब क्या है? एग्जांपल है रियल नंबर्स के। तो रियल नंबर्स को हम स्टोर करवाना चाहते हैं, अगर वेरिएबल उनके लिए बनाना चाहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, तो हमको क्या करना होगा? हमको वेरिएबल लेने होंगे फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप की मदद से, और मेमोरी क्रिएट करनी पड़ेगी, ब्लॉक क्रिएट करने पड़ेंगे। अब उस ब्लॉक को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर अपन फ्लोट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। फ्लोट, जैसा कि एग्जांपल में दे रखा है, एक स्टेटमेंट लिखी जाती है फ्लोट, फिर वेरिएबल का नाम, और फिर अगर कोई वैल्यू देना चाहते हैं, इनिशियलाइज करना चाहते हैं वैल्यू, तो उसका प्रारंभिक मान देने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके उसको वैल्यू देते हैं। जैसा कि अपने एग्जांपल में अपन ने लिख रखा है, फ्लोट पी एक वेरिएबल का नाम है, यानी कि मेमोरी का ब्लॉक है जो स्टोर करके रखेगा कौन सी वैल्यू को? 3.14। अब ये फ्लोट कीवर्ड की मदद से यूज़ होता है। अब ये कितना स्टोरेज में जगह घेरता है? ये जगह घेरता है 4 बाइट्स। क्योंकि ये स्टोरेज में 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2 पार्ट्स में अपने अपने अलग अलग पार्ट्स में इस पूरे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को, यानी कि रियल नंबर को स्टोर करके रखता है। 2 पार्ट्स में कैसे? जैसे अपना एक एग्जांपल लिया अपन ने 3.14 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.314 इंटू 10। यहाँ पर 10 की जो वैल्यू है इसको हम ई से भी डिनोट कर सकते हैं, जो कि एक्सपोनेंशियल कहलाता है। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.314 ई। तो ये हो गया कि इसको कैसे स्टोर किया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये चीज़ जो 0.314 जो वैल्यू है वो मेंटेसा कहलाती है, जबकि ई जो है अपना वो एक्सपोनेंशियल पार्ट कहलाता है। यहाँ पर ई के ऊपर पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 1। दैट्स वाई 1 पावर होने के कारण ये ई की पावर 1 है, और ई की पावर 1 का मतलब होता है 10। सो फॉर स्टोरिंग दीज 2 पार्ट, फर्स्ट इज मेंटेसा पार्ट एंड सेकेंड इज एक्सपोनेंशियल पार्ट। इन दोनों को अलग अलग स्टोर किया गया। 314 अलग, जो कि इंटीजर टाइप में स्टोर होगा और 2 बाइट घेरेगा जगह। एक्सपोनेंशियल पार्ट का जो पार्ट है, जो कि अपने इस कंडीशन में 10 है, वो भी अलग स्टोर होगा। तो इस तरह से ये 2 और 2 बाइट मिलाकर 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है मेमोरी के अंदर। और जब अपन इसका यूटिलाइज करते हैं प्रोग्रामिंग में, तो ये कंबाइन होके आ जाता है एज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, और हम उसको एज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर कर लेते हैं मेमोरी में, डिक्लेयर कर लेते हैं वेरिएबल, उससे मैनिपुलेशंस कर लेते हैं, और उसी तरह से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, या आप समझ चुके हैं, तो इसको आप लाइक करना वीडियो को, जो कि अपनी स्कूल की वेबसाइट बाल विश्व भारती चैनल पे मौजूद है। और उस वीडियो को लाइक करने के बाद अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चंस को आप क्या करो, उसमें लिख देना, जिससे उसके जवाब मैं वहीं पे दे दूँगा, या फिर आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूँगा, या फिर आप जब अपन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे तब उसमें डिस्कस कर लेंगे।